and the topic would be entrepreneurship and venture capital in India, a review. That you have been into all this startup and entrepreneurship development, technology development, all these things over the last 20, 30 days. So I have done my PhD on venture capital. I have also worked with number of persons in mobilizing resources, innovative way of mobilizing resources, informal way of mobilizing resources. So basically the presentation is a proper structured way, but I would request you people to interact more so that we can have more effective communication and discussion. And rest assured that it's a very interesting topic, insightful topic. And generally, when we discuss topic like venture capital, a lot of technical things are there. So if we go into technicalities, may not be we succeed in demystifying them. But if you please, start discussing things, then it become much better. So you are very senior, respected persons, very knowledgeable persons. You all have vast experience in your field. So I'll request you people to keep on discussing and engaging, interacting, so that it's not a monologue from my side. We are discussing things properly. So I'll start with formal thing, and we'll build up the case for discussion in between. So basically, the venture capital is called risk capital. I have already mentioned in my previous thing that even your equity capital is, you can get money for even equity purposes from outside. If you do not have money, you take from friends, you take from your father or somebody known to you. But there are professionally managed funds which are also ready to give you support money. Those funds are called venture capital funds. In fact, there is a story behind all this. In 1946 in USA, professor started a concept. He approached a millionaire that you give me $1 million, and with the help of this $1 million, I would give this money to various students who wish to start their businesses. In fact, one thing is there, when students of MTech, BTech or PhD students or PG students, or even your technology persons, the person who are having understanding of technology, they start a business, there is an implied meaning in it. The implied meaning is that they would be developing some technology and they would be commercializing that technology. They would be putting into business sense that technology, and once that technology is into business, market is global. This thing need to be appreciated. When technology involves, suppose somebody today develop something like carburetor or some mechanism through which this mileage can be increased by 20%. If you add something in petrol, its mileage goes up by 20%. Suppose somebody invented. So this is the technology, and once you make it happen, actually it is there. You see how much market is going to be there. Market is going into hundreds of trillions of dollars, because everybody will be needing it, because you can improve the efficiency of petroleum by 20%. So the power of technology is market is always global. Now the challenge before us is that we are starting at a small scale. Business is to be started at a small scale, but we are having in our mind a global market. So when market is global, how do you think you are going to get sufficient money to run that business? How do you think you are going to get right kind of management support? Because sometimes you may be having technology, somebody can give you money, but how to manage? Now you see, one example I can give you is this Uber taxi aggregator or your Ola cabs. Now technology is something, if you try to visualize, you are technology persons, technology is not very difficult. One is GPS, network is there, connectivity is there, but how to
conceptualize and visualize how you aggregate everything all and make it a profitable business. Now, when you try to make it a business, it's not only technology, but you also need the taxi drivers, the cab drivers, how you rope in those persons, co-opt those taxi drivers, how you train those taxi drivers. I mean, there may be certain issues. Uber has faced this issue in Delhi 2-3 years back when, I mean, something untoward happened. So these are the issues, how you handle those issues, how you manage those issues, how you comply with regulatory issues. So when you have an idea, you approach a venture capitalist. In that case, venture capitalist would give you money, finding your idea worthwhile, plus they would also sound you, caution you, help you, handhold you to address all these issues. Right? So examples, generally what happens is, when we talk about examples, it looks very, I mean, Ola or Flipkart or Microsoft or Google, these are very, very big examples. But you believe me, someday they were not even in existence some time back. So they were in the mind of one or two persons. They conceptualized, conceived, then they discussed, then they approached persons. So today, yes, they are very big businesses. So venture capital. So in USA, the professor took money. He started giving on technology financing. After 10 years, the fund, he returned the money along with much higher returns. So once that ARADC was successful, number of private persons also started coming in the field, and they started this venture capital business came in. So it started in USA, and formally, institutionally. Informally, always it has been there. You see, East India Company came, or in Europe, money was raised from various sources. Crowdfunding was there in England around 400 years back. So that is not the point. But the thing is, formally, venture capital started in USA, and it spread all around. Generally, not always, but we'll come to that. Generally, it start with it finance new and rapidly growing business. So always please remember, when growth potential, only important thing is, when growth potential of a business is there, venture capital would fund. Then they are generally, again, they would partner in your equity. Why they partner in equity? Because they expect future to be very bright in that business. So if 100 rupees they today invest in your equity, tomorrow it can be 10,000 or 100,000 or something like this. They expect such a big amount. Then they assist you in developing your business, and they add value through participation. So how do they add value? I have already discussed. When some more mature person is with me, they are more experienced, they understand market better. Sometimes what happens, a number of examples are there. If you see Economic Times, almost weekly full page is devoted to startups and their experience sharing all this. So when you think you can start a business in, suppose in Chandigarh, somebody, venture capitalist, will say, okay, this business is very sound, but it would be better if you started in Hyderabad, or you have a national market, or this product can come later on, first introduce this product. Such type of advice they can give. This is a formal definition. If you wish, I would like to discuss it a little bit, because it's a very interesting thing. Venture capitalist specializes in investing and managing asymmetries of information, leading to adverse selection. We highly technical, I have made it with purpose. Information leading to adverse selection and moral hazard in entrepreneurial ventures. Because otherwise we were using generally they do this, generally they do this. Here, this is the proper definition, scientific one. Asymmetry of information it's a very interesting term. Asymmetry of information, suppose we are transacting a business. You have got suppose you come to me with a business proposition. Now, I can only know that you have an idea, you on table, आपने कहा साहब ये my project है, इस project में हम सोचते हैं ये काम करेंगे. तो जो आप बता रहे हैं, I know only that. अब
मीन्स उसके पीछे हिडन मोटिव क्या है? यू थिंक आई गिव यू मनी एंड टुमारो यू जस्ट रन अवे विद दैट मनी, आई नेवर नो। तो दैट इज एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपके दिल में रियल पर्पज क्या है। अब एक प्रोफेसर के दिल में पर्पज, मैनी टाइम्स व्हाट हैपेंस विद ए प्रोफेसर, इट हैज बीन फाउंड आउट इन रिसर्च, वो कहता है मैं अपना आइडिया को प्रूफ कर दूं दुनिया को, मुझे बिजनेस करना ही नहीं। मतलब आपसे पैसा ले लिया उसने और बिजनेस में आइडिया प्रूफ किया और अपना घर फिर नौकरी पे चला गया। तो प्रोफेसर्स को कोई पैसा नहीं देता आजकल। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली डू नॉट फंड टीचर्स, जो सीनियर पर्सन हो गए, कहते सीनियर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, वो कुछ और दिमाग में ख्याल लेके आएगा। तो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड बिजनेस ओनली। तो एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि भाई आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन है, मेरे पास वो इंफॉर्मेशन होने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है, आप मुझे बताओगे नहीं वो इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन में एसिमेट्री आ गई। एसिमेट्री आपके पास है, मेरे पास नहीं है, एंड आई हैव नो मींस टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली यू हैव गॉट द इंफॉर्मेशन। तो वेंचर कैपिटल की क्या बात है? दे आर एक्सपर्ट इन मैनेजिंग दिस टाइप ऑफ, मतलब उनको है सिस्टम ऐसा कि वट एवर यू थिंक, वट एवर यू ट्राई, दे अंडरस्टैंड कि भाई नहीं यहाँ गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ ठीक कर रहे हो, उनके पास में ऐसा सिस्टम है। दिस इज वेंचर कैपिटल। अच्छा, अब क्या होता, एक बड़ी आसान सी बात है, हम लोग सारे जानते हैं कि कोई आपसे आके कहेगा साहब मुझे आप 10,000 रुपए दे दो और मैं आपको 50% ब्याज पे वापस कर दूंगा, तो आप जल्दी से पैसा दे देंगे किसी आदमी को? नहीं देंगे। अब सबको पता है। अब यहाँ पे जो पैसा लेने आ रहा है वो तो कह रहा है, आप देखो वेंचर कैपिटल में वो कह रहा है कि साहब मैं आपने मुझे 100 रुपए लगा दो और मैं उससे 10 लाख बना दूंगा। तो आप तो भी 50% ब्याज देने को तैयार नहीं है, और यहाँ वो कह रहा है 1000% दे दूंगा। तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन में क्या है कि अगर जो आपको बिग क्लेम्स करना है तो कोई भी आगे बिग क्लेम कर देगा। भाई मुझे पता लगे कि आपके पास में अभी 100 करोड़ रुपए हैं, तो मैं जाके कहूंगा सर 100 करोड़ का 1000 करोड़ बना दूं, तो कहने में क्या जाता है, कह दो। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एडवर्स सिलेक्शन, कि जब हाई रिटर्न की हम बात करते हैं तो हमेशा फ्रॉडुलस और पर्सन विद बैड इंटेंट वुड बी गोइंग देयर मोर। वेंचर कैपिटलिस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉर्ट आउट पर्सन विद गुड इंटेंट एंड बैड इंटेंट। ठीक है। और मॉरल हैजार्ड क्या होता? मॉरल हैजार्ड इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉरल हैजार्ड ये है, एक टेक्निकल वर्ड है, ये हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है किसी मॉरल वाले से। मॉरल हैजार्ड बेसिकली ये है कि सपोज मैंने शुरू किया था बिजनेस, कि एक बिजनेस करेंगे, आपसे पूरा एग्रीमेंट हो गया, मुझे लगता था प्रॉफिट में बहुत कमा लूंगा, आपने मुझे दे दिए 10 करोड़ रुपए। द मोमेंट यू गिव मी 10 करोड़ रुपए, मेरे दिल में आ जाए यार पैसे तो मिल गए, इतनी मेहनत क्यों करी जाए, इसी से काम चला लूं, है ना। मैंने आपको पता लगा कि 1 करोड़ का सौदा करा दिया और आपको दे दिया और कहा कि 2 करोड़ रुपए ये पकड़ मेरी नौकरी दे दे। तो मीन्स व्हेन आई इंडल्ज इन बिहेवियर दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड, देन वी कॉल इट मॉरल हैजार्ड। तो अब वेंचर कैपिटल की क्या खास बात है? आपके पास में कोई एसेट नहीं है, कोई आपकी बैकग्राउंड नहीं है, आपने जाके कहा कि मेरे पास एक, जैसे बिल गेट गया, ही वाज सिंपली ए स्टूडेंट ऑफ, ग्रेजुएट कर सेकंड ईयर का था स्टूडेंट, ये आप देखें लैरी पेज था, ये भी 16-17 साल का बच्चा था। फेसबुक का क्या नाम है इसका, जकरबर्ग, वो भी 16-17 साल का बच्चा था। अब ये लोग किसी के पास जाएं तो सामने वाला वेंचर कैपिटल की क्या खास बात होती है कि वो आपको पहचान, आपके नंबर एक तो उसे ये बताइए बिजनेस जो कह रहा है ये चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा तो कितना बड़ा बन सकता है, ये हर एक को तजुर्बा नहीं होता, वेंचर कैपिटलिस्ट को समझ है। फिर उसे ये पता है कि भाई ये कितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे से छुपा ले, ये चीज मेरे पास आ गई तो काम चल जाएगा। तो व्हाट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन टू ड्रॉ सो दैट आई कैन टेक प्रॉपर डिसीजन, दिस वेंचर कैपिटलिस्ट अंडरस्टैंड। देन वो सिस्टम स्कीम ऐसी बनाएगा कि आप उससे पैसा लेके सोचो भाई बिजनेस ना करूंगा, मेरा वेंचर कैपिटल का पैसा डूब जाए, वो ये इंश्योर करेगा कि आप ऐसा ना कर पाओ। तो वेंचर कैपिटल की जो खास बात है, ये 3 चीजें हैं मेरे ख्याल से। अब आपको बाकी चीजें तो अब क्यों करा जाता है वो इसी के जवाब में किया जाता है। वो मतलब पूरा कंट्रोल रखते हैं आपके बिजनेस में। कई बार आप वेंचर कैपिटल से पैसा लेके, कुछ लोगों ने पैसा ले लिया तो बोले यार हमने पैसा तो ले लिया लेकिन ये तो बहुत बुरे हैं, कोई काम ही नहीं करने देते, हर जगह कंट्रोल कर रखा है इन्होंने। तो दैट इज ऑल्सो एन इश्यू। ये सेबी की डेफिनेशन है। अगेन आई थिंक आई कैन लीव इट, ये ऑफिशियली अवेलेबल है। ये अगर जो आप लोग चाहोगे तो इसमें हम बातचीत करेंगे। एक तो जनरली दे विल गिव मनी फॉर लॉन्ग टर्म, देन इसमें लिक्विडिटी जब लॉन्ग टर्म होगा तो लिक्विडिटी नहीं होता, क्योंकि ना तो लिस्टिंग है कंपनी की कहीं पे, ना बिजनेस शुरू हुआ है। बिजनेस शुरू होगा 3 साल बाद, पैसा आज ले लिया। देखो है तो बड़ा मजेदार सा अरेंजमेंट ये,
अच्छा, रिस्क तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि हाई रिस्क होगा। जब आपको हमने पैसा दे दिया और आपके पास बिजनेस नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, देन रिस्क इज वेरी हाई। पार्टिसिपेशन वुड जनरली बी इन इक्विटी, क्योंकि क्यों होता है इक्विटी में? बिकॉज आई वुड लाइक टू बी वन ऑफ द डिसीजन मेकर, कि कल को जो कंपनी बना है उस कंपनी में यू डू नॉट स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस दैट हर्ट माय इंटरेस्ट, क्योंकि पैसा तो मेरा लगा हुआ है। तो आई वुड आल्सो लाइक टू बी ऑनर ऑफ द कंपनी। देन पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, अभी कहा था ना मॉरल हैजार्ड और एसिमेट्री ऑफ वो, तो मॉरल हैजार्ड में क्या था कि आपने काम ही नहीं किया तो बोले तू नहीं करेगा, पैसा मेरा, मैं अपने आप संभाल लूंगा अपने पैसे को, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इस वजह से दे वुड बी, आई मीन दे वुड कीप एन, खुद नहीं करते मैनेजमेंट बट दे कीप एन आई ऑन मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट काम कर रहा है वो कहेंगे भाई की डिसीजन, बिफोर टेकिंग की डिसीजन, बाय इट्स माय मनी, यू टेक माय कंकरेंस, नॉट परमिशन बट एटलीस्ट आई शुड नो, एंड इफ आई नो एंड आई फाइंड आउट दैट आई डू नॉट एग्री विद दिस, आई विल लेट यू नो एंड आई विल नॉट परमिट यू टू मूव फॉरवर्ड इन दैट केस। Profit, there is no need to tell you profit, because all the world's best company. Now, one thing which we can talk about venture capital is, and that is the beauty of capitalist system. Capitalist system has got number of flaws, but one positive point in venture capital, in capitalist system, is that all the time you will see new and new persons are emerging with businesses and with more money. देखो क्या था, टाटा बिरला पहले इंडिया के रिचेस्ट पर्सन होते थे, अंबानी आ गया, चलो ठीक है। लेकिन आप पीछे देखेंगे, प्रेम जी, अजीम प्रेम जी विप्रो का आ गया, उसके बाद में आप देखें तो ये इन्फोसिस का आ गया, इन्फोसिस ने कितने लोगों को करोड़पति बना दिया। और इसके बाद में आप देखेंगे बायोटेक की किरण शाह मजूमदार है, आजकल नंबर 2 पे कौन है इंडिया में? दिलीप सिंह हुई, सन फार्मा का। तो ये लोग अचानक में इतने बड़े कैसे बन गए, कहां से पैसा आ गया इनके पास में? इंडिया में तो फिर भी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन दुनिया की जो बेस्ट कंपनी है, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दीज कंपनीज आर ऑलवेज फंडेड बाय, सपोर्टेड बाय वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल की अगर जो आप देखें पूरी दुनिया में सबसे खास बात क्या है कि एक तरफ तो जनरल मोटर, जनरल इलेक्ट्रिक, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको कि सामने आप खड़े होना नहीं पॉसिबल होता। अब आप देखिए एक तरफ तो वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट का टर्नओवर इज $600 बिलियन। वॉलमार्ट के मुकाबले पे Amazon.com आता है 20 साल पहले, और somebody starts, some venture capitalist start supporting a person। आज वो पर्सन जो वॉलमार्ट ने 50-100-60 साल में किया था, उतना उस कंपनी ने 20 साल में करके, और वॉलमार्ट को Amazon.com ने पीछे छोड़ दिया। और सपोर्ट, पैसा भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है। तो एक आम आदमी को वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना दे, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी को चैलेंज कर दे, तो वरना क्या कैपिटलिस्ट के बारे में क्या जनरल कंप्लेन क्या रहता कि बिग बिजनेस वुड एक्सप्लॉइट स्मॉल पर्संस। हियर वी हैव डेवलप्ड अ सिस्टम वेयर स्मॉल कैन आल्सो चैलेंज बिगेस्ट वन। सो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग ब्यूटी ऑफ venture capital, that even the smallest, if you have got the talent, you can challenge the might of biggest one and you can succeed in your venture. Now अब suppose today you start a business, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और कोई आपके स्टूडेंट से कहे जाके कि साहब मेरे ये, एक तरफ तो आपका इन्फोसिस कंपनी आ जाती है कैंपस करने के लिए, और एक तरफ हमारे जेपी सिंह जी जाते हैं अपनी कंपनी खोल लेते हैं और किसी को कंपनी में नौकरी देने के लिए। तो आप बताइए कि कोई स्टूडेंट किस कंपनी में जाए नौकरी करने? ये इन्फोसिस में 1 लाख रुपए तनख्वाह महीना, जेपी सिंह कहने में तो 20,000 रुपए दूंगा, और कंपनी अभी 1 महीना हुआ है बने हुए। तो कोई समझदार बच्चा जाएगा जेपी सिंह के साथ? नहीं हुआ यार, उसकी 1 लाख की मिल रही है इन्फोसिस में। नहीं 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 नहीं, बिजनेस आपको थोड़ी है, बिजनेस तो जेपी सिंह जी का है। यस, तो केवल 2 लाख रुपए के पैकेज पे गए हुए हैं। चलिए ठीक है, 2 लाख पर एनम के पैकेज पे गए हैं, बट दे आर, वो पूरा का पूरा बिजनेस स्टार्टिंग से वही संभाल रहे हैं। हाँ, कंपनी उनकी, यस। तो अब उन्हें, अच्छा, लेकिन 3-4 साल बाद कंपनी उनकी भी होगी। हाँ ठीक है, अच्छा, अब नहीं, यू आर राइट, ऐसा हो रहा है। अब इसमें वेंचर कैपिटल का क्या रोल है?
वेंचर कैपिटल का सर इतना सा रोल है कि अगर जो समझ, देखिए मैं नहीं जानता बच्चे किस बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, लेकिन मेरे पास कोई स्टूडेंट आ जाए और कहे कि सर 1 लाख रुपया दे रहा है महीने का इन्फोसिस और 20,000 रुपये दे रहे हैं मिस्टर जेपी सिंह, और इनकी नई कंपनी है और वो इन्फोसिस, तो अब कहाँ ज्वाइन करना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि भाई ये जेपी सिंह की कंपनी के फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं ये एक बार चेक कर लो। अगर जो बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं तो यहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज 20,000 है, कल को आप इस कंपनी में 4 साल बाद चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हो जाएंगे, तो कल को आपको बहुत कैरियर में फायदा मिलेगा, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी आपकी। अब the point is, how can you be sure that the company that is started today would be a big company after 3, 4, 5 years? There should be some system to find out so that कि देखो, एक तो क्या आंखें बंद करके रिस्क ले लिया, तो उससे ज्यादा तो ये रहेगा ना, थोड़ा बहुत तो कोई सेंस हो, जब वेंचर कैपिटल वाले कोई मेहनत समझदारी से काम करते हैं, हमारे पास भी कोई सिस्टम होना चाहिए। तो उस सिस्टम में उन्होंने कहा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर जो रतन टाटा ने पैसा लगा दिया मेरे बिजनेस में, अगर जो नारायण मूर्ति मेरे बिजनेस को सपोर्ट करता है, तो हम कहेंगे साहब नारायण मूर्ति में इतनी अकल तो होगी, उसने चेक कर लिया होगा, बिकॉज नारायण मूर्ति है चेक ऑल दिस। अब हम इस बिजनेस में अपनी नौकरी शुरू कर लेते हैं, बिकॉज नारायण मूर्ति ने कुछ कर रखा है, वो इसके बोर्ड में आता है, या उसने पैसा दिया है, या पार्टनरशिप की है ना, या रतन टाटा ने किया है। तो आपको ज्यादा अच्छा ये रहता है हमेशा कि इस टाइप की एश्योरेंस मिल जाती है ना, वंस दे आर इनटू इट। अब ये इट्स नॉट द केस विद ओनली स्टूडेंट्स। अब आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक में भी दिखाएंगे, देखो जी नारायण मूर्ति इसमें शामिल हो, कहेंगे अच्छा नारायण मूर्ति है भाई, तो चलो कंपनी ठीक होगी, उसको शक की निगाह से नहीं देखेंगे और थोड़ा सा बाकी फॉर्मेलिटी के हिसाब से पैसा दे देंगे। फिर आपने अपना माल सप्लाई करना है, कल को आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो आप कहोगे देखो जी नारायण मूर्ति मेरे बिजनेस रिलेटेड है, तो नाम ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट को तो क्वालिटी चेक करेंगे, लेकिन अगर जो नारायण मूर्ति का नाम नहीं है तो वो आपकी 4 बार आपको बात करनी पड़ेगी। और नारायण मूर्ति का नाम है तो क्या होगा, वो पहली बार में कहेंगे भाई अपना प्रोडक्ट छोड़ जाओ, लेट मी चेक इट कि ठीक है या नहीं। तो ये दिस इज बेसिकली नेटवर्किंग, रेपुटेशन। और एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होता है इसका वेंचर कैपिटल का। वेंचर कैपिटल आपको दुनिया में, क्योंकि उनके नेटवर्क होते हैं, जो काम आप कर रहे हो आपसे रिलेटेड कोई आपकी जो सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री चीज कहीं अमेरिका में है, यूरोप में है, या साउथ अमेरिका में है, वो आपको कनेक्ट करा देगा कि यार आप यहाँ ये कर रहे हो, मैं वहां पे भी सपोर्ट कर रहा हूँ, दोनों मिलकर ये काम बेटर कर सकते हो। तो इस वजह से दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ वेंचर कैपिटल, जो आजकल वो चले हुए हैं बहुत ज्यादा। ये सब छोटी छोटी टेक्निकल सी बातें हैं। देखिए ये स्टेज हो जाती है। सीड मनी क्या है, मतलब आपको केवल यह है कि माइंड में कोई आइडिया है, जैसे कोई आपने ऐप बना रखा है और उस ऐप को आप कहें कि भाई ये ऐप इस टाइप से काम करता है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग उसके लिए कहेंगे, तो दिस इज बेसिकली सीड मनी। तो सीड मनी के लिए हो सकता है आपको 1 लाख 2 लाख रुपए की जरूरत हो तो वो मिल जाता है। आजकल जैसे ना इसके सीड मनी के बजाय इंडिया में वो बहुत चला हुआ है, आप लोग सबने वाकिफ होंगे उससे, टेक्नोलॉजी उससे है, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो बेसिकली जो हमने बूट स्ट्रैपिंग वाला जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में, और यहाँ पे जो है बेसिकली जो कंसेप्चुअली जो इंक्यूबेशन सेंटर का इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सपोज यू वांट टू प्रूव योर कंसेप्ट कि हमने जो बनाया है ये एक्चुअली इट वर्क्स, तो उसके लिए आप यू नीड ए कंप्यूटर, यू नीड एन ऑफिस, यू नीड ए टेस्टिंग लैब, यू नीड सर्टेन अदर सपोर्ट, टेलीफोन भी हो कहीं। तो अब हमने इंक्यूबेशन सेंटर आपके इंस्टीट्यूट में बना दिया, उसमें 10 रूम्स हैं, बेसिक फैसिलिटीज हैं, आपको हमने उसका किराया नॉमिनल सा किराया 2,000 रुपए रख दिया। तो एक तो सीड कैपिटल से आपको 2 लाख रुपए लेके काम शुरू करते, हर किराए पे लेते, कंप्यूटर लाते, सब सामान करते, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सिंपली आपने इंक्यूबेशन सेंटर में एक रूम ले लिया जाएगा। तो सीड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, आपका काम आसान हो गया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, और उसी दिन ये वहां पे लाइक माइंडेड पर्सन भी मिल गए। तो इस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। स्टार्टअप में क्या है कि अब हमने प्रूव हो गया आइडिया, तो हम इसका प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो स्टार्टअप में आ जाता है, जो मोदी गवर्नमेंट शोर मचा रही है ना, स्टार्टअप स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इज नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। जब वो स्टार्ट हो गया, फिर जब थोड़ा प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो गया, तो क्योंकि शुरू में क्या होता है प्रोडक्ट में,
in initial stages product में always some glitches are there, some problems are there. So how market is going to respond to them, how would you address those issues, all these things are taken care of during a startup, and then you come to first round. And then first round means initially small facility, then big facility. But venture capitalists are coming only in first round, not before that. They're not coming to finance your seed money or startup. You see, Or are they? no, in a sense you are right, but in this complex world, as we were discussing during tea, all type of funds are there. So every time, Since this getting on venture capital, we need to make it clear that where does venture capitalists normally come in? normally they come at startup stage. Because Yes, they come. And first round, second round, that is purely venture capital. that is in fact, then we start calling it private equity. Two things go simultaneously. One is venture capital, another is private equity. And now you would see, I have got some data in the end of this discussion. उस डेटा में $20 billion, $30 billion तक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. तो that is basically not venture capital. That is venture capital plus PE. Yes, you are right. So PE में क्या है कि suppose I start a UTI बैंक, हमने स्टार्ट किया. अब बैंक स्टार्ट हुआ साहब तो एक्सिस बैंक, उसमें हमने सब अपना 1 करोड़ पे हमने डाल दिया, और जो बैंक स्टार्ट किया था तो हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन्स वर देयर, सो दे गॉट 100 crore rupee फ्रॉम some private equity funds. So that would be counted as venture capital. It's a direct investment, but basically risk is there, but other features are not there. So इसमें देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है जो कि इसके डिस्कशन में और ढंग से आप देखें, टॉपिक अलग है, वो अलग. ये मैं अपनी थीसिस की वन ऑफ द फाइंडिंग है मेरी. No sensible business person would take unnecessary risk to get the same return. रिटर्न आपका फिक्स है तो आप रिस्क तो मिनिमाइज करेंगे ना. ये तो कॉमन सेंस की बात होती. अब इंडिया में अगर जो हमें ज्यादा रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ होता है? टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग में. अब अगर जो टेक्नोलॉजी फाइनेंस, इन एडिशन टू टेक्नोलॉजी फाइनेंसिंग, हमारे पास में कोई ऐसे रास्ते हैं जहां पे मुझे 50, 60, 70, 80% रिटर्न मिलने की संभावना है और रिलेटिवली रिस्क कम है. मान लो प्राइवेट इक्विटी में है. अब बैंक की इंडिया में तो बहुत जरूरत है. अब इंडिया में बैंक की जरूरत है और हमने बैंक स्टार्ट किया तो आपने हमें पैसा दे दिया. तो इस वजह से इंडिया में अभी आप देखेंगे कि अभी मान लीजिए मैंने अपना कहीं रोड बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेना था और प्राइवेट इक्विटी ने मुझे पैसा दे दिया कि भाई आपको हम इक्विटी पार्टनरशिप करते हैं. बट दैट इज नॉट academically, it would not qualify as venture capital. So you are right that way. Venture capital generally should be at startup or first round, when risk is highest. And but you see whole range of spectrum of specialized venture capitalists are there. Some are focusing on early stage, some are focusing on later stage, some are into private equity, some are not taking risk at all, some are taking risk. In India, luckily, Indian and this startup market, startup scenario is really very promising and very good. After the world over, Silicon Valley is known for its giving. देखिए सिलिकॉन वैली के बारे में अगर हम बात करें आपसे, आप लोगों ने सुना होगा सबने, रिसर्च होना इज वन थिंग और उसको कॉमर्शलाइज करना इज क्वाइट अनदर थिंग. तो सिलिकॉन वैली इज अ प्लेस जहां दुनिया की सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइज हुई है. तो उसके पीछे जो रिसर्च हुई, जो स्टडी हुए, तो उन्होंने पाया कि वहां क्या है, पूरा माहौल ऐसा है कि एवरीबडी बिलीव कि जो भी, जैसे बंबई में कोई जाए ना तो सोचे मैं हीरो बनने आया हूं, तो कोई नाराज नहीं होता, उसकी मजाक नहीं करते. मुंबई में जो जाएगा कि भाई कैसे आया, हीरो बनने आया, कि भाई आया होगा पता नहीं बन ना जाए, क्योंकि शाहरुख खान ने एक दिन कहा था और बन गया था, अमिताभ बच्चन आया था बन गया था. तो वो मतलब वो हो जाता, यकीन हो जाता कि बनेगा. ऐसे ही इसमें सिलिकॉन वैली में इतने बिजनेस बन गए दुनिया के कि सबको पता है हाँ इन्हीं में से कोई ना कोई 10 लोग आए, इनमें से हो सकता है 9 फेल हो, बट एक कोई कौन बना दे. तो वहां ऐसा पॉजिटिव माहौल है कि व्हेन यू से, आप कहीं जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए, कहीं वकील के पास जाइए, किसी सीए के पास जाइए, किसी जो बैंकर के पास जाइए, आप कहोगे भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो नोबडी रिडिक्यूल यू. आप कहते हो साहब हम आई हैव फेल्ड 3 times इन माय लाइफ,
I'm 30-year-old, I do not have any job and I failed 3 times in life. Silicon Valley में कहेंगे यार अब क्या पता इस बार कामयाब हो जाए. तो that positive social vibrant वो ambience जो है वो सिलिकॉन वैली में है. प्लस अकेले पैसे से बात नहीं बनती, वे लीगल इश्यूज आर रिक्वायर्ड, तो वहां पे बेस्ट अटॉर्नी भी आ गए हैं जो इस टाइप का सपोर्ट देते हैं, सीए भी आ गए हैं वहां पे जो इससे रिलेटेड जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था, ऑल दैट सिस्टम इज ऑल्सो, क्योंकि 70 से चल रहा है तो हैज ऑलरेडी कम इन प्लेस. आफ्टर सिलिकॉन वैली और भी कुछ जगह फेमस हो रही थी, इजराइल भी थोड़ा फेमस हुआ है, लेकिन बेंगलोर हैज बिकम वेरी फेमस इन द वर्ल्ड. तो ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट फॉर स्टार्टअप Bangalore is equally now known in the world, and almost similar type of environment, if we go by the newspaper reports and other reports, that is happening in Gurgaon. And in Gurgaon you see Flipkart is there, Ola Cab is there, and a number of other businesses are also coming. The Infosys came up there, Wipro came up there, then Mindtree Consulting. IT is, most of the IT companies started in Bangalore. So those persons started their business, they become so successful that most of the persons have experienced, have seen, have shared their thing. They came from this background and today they are successful. So Bangalore is also one of the very promising place for startup in the country. So because Bangalore is there, तो बेंगलोर में उसको फंड, उसको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे. और अब तो बेंगलोर में जैसे मान लो अगेन उनका नाम आता रहता है बार बार, नारायण मूर्ति या नंदन निलेखनी या जो भी हैं ये बड़े नाम, तो ये लोग इन्होंने अपने वो पूरे सिस्टम बना लिए कि खुद ही पैसा देते रहते हैं, खुद सपोर्ट करते रहते हैं. तो बेंगलोर में ये चला हुआ है. लेकिन ओवरऑल जो है, जो वेंचर कैपिटल एकेडमिकली बातचीत है, वो सीड से स्टार्ट होकर, और देखो थर्ड फोर्थ ये एकेडमिक होते हैं, एक्चुअली कहीं कुछ नहीं होता है. एक्चुअली तो ये है कि आइदर योर बिजनेस इज इन डाउट और योर बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड. सो योर बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड, रिस्क इज लेस, प्राइवेट इक्विटी. व्हेन योर बिजनेस इज योर प्रोग्रेस इज इन डाउट but potential seems to be very high, then we can call it venture capital loosely. Now we were talking about seed money period 8 to 10 years, risk is extreme, and that is why very limited persons would be in this field. Very limited, may not be anybody, but if you go and convince somebody, you can get the money, that is for sure. ये ऐसा बिजनेस है इसमें कि कभी हम किसी चीज को मना नहीं कर सकते. हम क्या, आपने कहा ना, जैसे हम कहते नहीं देंगे सर, अगर उसको कोई ऐसा बता दे यार ये ऐसा होने जा रहा है, करके देख चलो, तो ये हमेशा है. ये इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है. डील ओरिजिनेशन, यू प्लान योर थिंग, बिजनेस आइडिया बनाते हैं, आपने बनाया. और सबसे मजेदार बात यह है, आई हैव एक्सपीरियंस इट, किसी मैं पर्सनली आई हैव नॉट डन इट, बट विद समबडी, किसी को हेल्प करते हुए मैंने बिजनेस प्लान काफी लोगों को बनवाए हैं. तो व्हेन यू डेवलप बिजनेस प्लान एंड यू अप्रोच वेंचर कैपिटल, तो सबसे पहले वो बड़ा आपको रेडिकल से करते हैं, बोला देख भाई यहाँ बिजनेस ऐसे चलता नहीं, कुछ इसमें कुछ दम है नहीं है, वो मतलब they exam, first they would take it कि you are going to be rejected. So rejection rate in venture capital is very very high. Out of 1,000 they may reject 900 or 950 or 960 something. So many things are rejected. Even some good projects are rejected many a time. Then screening would be there, then due diligence would be there, then deal structuring. Deal structuring basically means that how are you going, when partnership is agreed, what terms and condition, how much equity they would take, these type of. Then once investment is made, what role they would have in management, what role they would have in advisory things and strategic issues, all those things are already decided. And then also when are they going to exit, because venture capitalists are into professional, so they would not remain in your business. So when they intend to get out of your business and you become the owner of your business after 5-7 years, something like this. ये एक छोटा सा है. 100 बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उनमें से वेंचर कैपिटल में, जो वेंचर कैपिटल के सपोर्ट से, उनमें हार्डली 10 सक्सीड, 90 फेल्स. उससे पहले की स्टोरी यू कैन सी ऑन स्क्रीन.
such a risky business this one is, and that is why government are not supposed to be into this business. A very specialized person, very competent person, very courageous persons are into it, because they are chasing very high profit, and in the hope of profit they are taking a lot of risk. They are funding 100 businesses, out of 10 only one succeed, and still they are taking a chance. ये agreement पे based होता है या contract? Because the two parties ना एक पैसा दे रही है, एक ले रही है, ठीक है ना, partnership हो रही है. So either it will be an agreement or it will be a contract. Contract, if it is, then it is binding of legal things. Agreement means it's fine actually. देखो साहब, ये जो है वो कभी आपने स्टोरी सुनी है ना शर्लक होम्स की, वो क्या सॉरी वो अरे बड़ी वो मैं बिल्कुल माइंड से निकल गया, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है ना वो शाइलॉट. ये जो है वेंचर कैपिटलिस्ट आर वेरी रूथलेस पर्संस एंड दे वुड नेवर लीव एनीथिंग ऑन चांस. हमने जैसे पहले ही कहा आपसे कि एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई आपको पैसा दे रहे हैं वो और बदले में उन्हें कोई गिरवी चीज रखने के लिए नहीं है, आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. तो ये लीगली आप अगर जो बच के निकल जाएं दैट इज वन थिंग, बट अदरवाइज दे विल नॉट लीव यू. तो स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होंगे, क्योंकि एग्रीमेंट का बेसिकली जो मैं समझता हूँ मीनिंग, विदाउट गोइंग इनटू टेक्निकल थिंग्स, कि वन समथिंग इज डिसाइडेड दिस इज फॉर श्योर इट विल हैव टू बी एडहर्ड टू. वही मैं कह रहा हूँ कि माय ओपिनियन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. जब कोई चीज आप कोर्ट में लिख के दे रहे हैं, यस, तो वो तो आपकी बात नहीं, यू आर इन अ सेंस आई गॉट योर पॉइंट. द थिंग इज वो नहीं, आप दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. आई गॉट हिज सेंस बट ही वाज सेइंग, बट सिंपली ट्रस्ट पे नहीं चलता, दे पुट इन पेपर्स. ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट पे भी चलते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट वंस यू ट्रस्ट समबडी, सपोज हम किसी सामान खरीदते हैं तो दैट इज आल्सो एग्रीमेंट कि भाई आई एम मेकिंग पेमेंट, ही इज सप्लाइंग मी थिंग, एंड यू कैन गो टू कोर्ट, यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट, सो दैट वे इट्स ऑल राइट. बट वेंचर कैपिटलिस्ट डू नॉट लीव दिस थिंग ऑन चांस. बट इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं कि 100 जैसे वेंचर है ना, आपने किया इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, 10 सक्सेसफुल हो गए सिर्फ, है ना, 90 फेलियर हो गए. Then what is to happen actually? Because जब हमें पता ही है कि मतलब सक्सेस रेट इज सो लो एक्चुअली, व्हाट है, सो जो जिस बंदे के पास पैसे है ही नहीं, ठीक है, अब वो डूब गया बेसिकली, है ना, वो कहाँ से रिकवर करेगा एक्चुअली बंदे से? देखिए, इसमें आपको मैं इसका, हाँ आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका लॉजिक बता देता हूँ. इंश्योरेंस का सबको लॉजिक आता है. इंश्योरेंस में क्या होता है, ये इंश्योरेंस का जस्ट रिवर्स है. इंश्योरेंस में आपसे सब कार का सबसे 10 रुपए ले लिए, जिसकी गाड़ी खराब हुई उसको 50 रुपए दे दिए, 10 आदमी ने दिए तो कार कंपनी के पास में 100 रुपए आ गए, आपको 50 दे दिए उसने, और 50 रुपए बचे थे, कुछ खर्चा हो गया, 20-30 रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसका काम चल गया. ये इंश्योरेंस वाले इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, एग्रीगेशन ऑफ रिस्क कर लेते. वेंचर कैपिटल में क्या है कि ये इसका उल्टा, जैसे उन्होंने मतलब मेरा रिवर्स कर दिया उसको. उन्होंने कहा कि हमने एक बिजनेस से, मुझे उम्मीद ये है कि सबको, हमने आपको 10 रुपए दिए, तो 10 रुपए 90 से डूब गए, तो मेरे 90 रुपए डूब गए. एक से मुझे पता है कि 10 रुपए फिर मेरे 200 बन जाएंगे, तो आई एम होपिंग कि 10 रुपए के 200 बनेंगे, सबसे बने एक से, तो मुझे 100 के एक साल बाद 200 हो गए, और बाकी जहां डूब गए वो अपने घर, वो ज्यादा उसे मालूम है डूब गए तो क्या कर सकता है, जो तो चलता है. लीगल प्रोसीडिंग में भी ऑन टू रिकवर व्हाटएवर इज पॉसिबल, बट बेसिकली दे आर नॉट आफ्टर दैट, दे आर आफ्टर हाई रिटर्न, एंड दे एक्सपेक्ट 1 or 2 business would compensate for most of the business. And surprisingly, their strategy has been successful. Surprisingly, there are a number of companies, venture capitalists the world over, who are actually so successful, all the time picking up right winners. और दुनिया में जो सबसे फेमस हैं उसमें एक का नाम है विनोद खोसला, ही इंडियन. ये विनोद खोसला पहले किसी कंपनी में पार्टनर, वेंचर कैपिटलिस्ट में जो ना जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं वो पार्टनर ही होते हैं, प्रोफेशनल उसमें. तो इनिशियली ही वाज ए पार्टनर, अब वो अपना काम चलाता है,
अपना अपना रन करता है, और वो केवल वेंचर कैपिटल की एक्टिविटीज के थ्रू बिलियंस डॉलर कमा चुका। तो आज की तारीख में अगर जो सिलिकॉन वैली में ये हो जाए कि वेंचर कैपिटल ने हमें सपोर्ट किया है, तो आपका काम 50%, और विनोद खोसला ने सपोर्ट किया है तो पूरे सबको पता लग जाता है कि वो माय गॉड ये तो सक्सेसफुल होगा। तो रेपुटेशन इज सो हाई। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गई बात ना? हाँ प्लीज। One more thing. हाँ श्योर। कि जैसे आपने बताया कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ना, he can ascertain the asymmetry of information very well. And जो सारी पॉसिबिलिटी वो बड़ा जजमेंट उनका अच्छा होता है। ठीक है ना? उसके बाद भी 100 में से सिर्फ 10 सक्सेसफुल हो रहे हैं, बेसिकली ये 100 में से only 10 successful, 90 get unsuccessful. So what are the constitute basically, because they are actually assessing everything also, na, basically. You see, there is no, I mean, exact proper answer to your question. Only and only thing is the God has made this world like this, that things are so uncertain. That you see, Market forces है ना, मैं sir, you are, मैं कह रहा हूँ ना, there cannot be an exact answer, right answer for your question. Only thing is, no, it's not gamble. You see, share, when I invest my money in share market, it's not gamble to me, because I invest money on the basis of certain things that tomorrow this share would increase. But yes, risk is there. So my assessment about future is there. That tomorrow Reliance may be more, or Airtel may be more, or Reliance Jio would succeed, or Airtel, or Idea, or Vodafone. Today we can only anticipate. These four big players in telecom is there. 4G is coming. So after 5 years, who would be on the top? Who share would go up more? So basically, from the, I mean, again I repeat, from a strategic management perspective, how I see the things, what management plan they have put in place, and which plan is more likely to succeed, who has got more competent team, who has got more resources. So I judge on the basis of these things. So when I take decision, it is informed decision. This is not a gamble. There are certain persons जो कि आंखें बंद करके gamble करते हैं शेयर मार्केट में. Similarly, अब कितना भी आप कर लीजिए, देखिए अब अल्टीमेटली तो सक्सेस होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. अब स्टैटिस्टिक्स में आप लोग देखें जो लॉ प्रोबेबिलिटी है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, जोक बहुत बने हुए हैं. तो एक जोक है कि भाई उसने कहा कि व्हाट इज द ऑपरेशन होना था किसी का, तो उसने कहा सर ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने क्या प्रोबेबिलिटी है. बोला भाई देखो 1 out of 100 प्रोबेबिलिटी है, और आई हैव ऑलरेडी ऑपरेटेड 99% ऑल डाइड. तो ये तो लगता है कि भाई इसका मतलब दोनों ही मीनिंग हो गए. तो इसका ये है कि देखो मार्केट कैसे चलता है. आपको मैं इसका एक छोटा सा अलग एग्जांपल देता हूं. इंडिया की कोल माइंस, गोल्ड माइंस जो है वो कोलार में है, कोलार गोल्ड माइंस. और हम लोग आपस में मन में सोचते हैं कि भाई जिसकी गोल्ड माइन हो वो तो पता नहीं कितना पैसे वाला होगा. सोचते हैं ना. साउथ अफ्रीका में बहुत सारी गोल्ड माइंस है. मजेदार बात यह है कि गोल्ड जब 30,000 रुपए से ज्यादा चला गया, then only certain gold mines could become viable. They started extracting gold from those mines after gold reached $30,000, 30,000 rupees per 10 gram. मीन्स क्या था कि गोल्ड को जमीन से निकाल के गोल्ड बनाने में इतना खर्चा आता है कि 1 ग्राम को बनाने में 3,000 रुपए लग जाते हैं. अब आपके 3,000 रुपए लग गए 1 ग्राम गोल्ड को निकाला जमीन से और गोल्ड बना के उसको मतलब सेलेबल बनाने में, और आपको आमदनी हो 29,000 रुपए की, तो आप गोल्ड माइन से नहीं निकालोगे. जब 30,000 से ऊपर चला गया तब निकाला. तो गोल्ड की हायर मार्केट प्राइस इज वन थिंग, बट गोल्ड माइंस आर वर्किंग ओनली प्रॉफिटेबली व्हेन प्राइस गोज बियॉन्ड अ पॉइंट. अब जैसे इसकी क्रूड ऑयल की बात लें आप. क्रूड ऑयल में आज ही मैंने पढ़ा कि जो ईरान है, ईरान को 57 रुपये में पर बैरल उसका खर्चा आता है निकालने में, मतलब, और इसको सऊदी अरेबिया को आता है $62 पर बैरल. इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट सारा उनका, इसके नीचे रहेगा तो लॉस उनका. लेकिन अगर जो 62 से नीचे और 57 से ऊपर हो तो केवल और केवल दुनिया में ईरान को बेनिफिट होगा. दिस इज द इकोनॉमिक्स. अब आप देखें कि भाई तेल तो सारे निकाल रहे हैं, तो व्हाई आर दे एक्सट्रैक्टिंग ऑयल? बिकॉज प्रेजेंटली फिक्स उनका पैसा लगा हुआ है, और बंद कर देंगे तब भी लॉस होता रहेगा, तो तेल निकाल रहे हैं. बट होप ये है कि फ्यूचर में प्राइस वुड गो बियॉन्ड दिस एंड दे वुड बी प्रॉफिटेबल.
तो इसी ढंग से वेंचर कैपिटल वाले ने जब शुरू किया तो उसे पता है कि भाई आज तो मुझे हो सकता है घाटा हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं में से मेरा खर्चा निकलेगा और 10 में से एक भी हो रहा है तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, वो ये करता रहता है। अब आपकी बात ठीक है, ये हर एक के साथ नहीं हो रहा। अब सपोज विनोद खोसला के 10 में से हो सकता है 5 सही हो जाए तो ज्यादा पैसा कमा गया। आपने मैंने शुरू किया कोई काम तो हो सकता है 10 के 10 फेल हो जाए तो हमारा बंद हो जाएगा बिजनेस। तो वेंचर कैपिटल में इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या होता है, ये प्रैक्टिकल सी बातें हैं। जो हाईली कॉम्पिटेंट एंड रेस्पेक्टेड फंड मैनेजर्स वो अपना एक टीम बनाते हैं और अपना सपोज कीजिए उन्होंने $100 मिलियन अपनी जेब से लगाया और एक फंड क्रिएट किया जैसे म्यूचुअल फंड होता है, और उस फंड को क्रिएट करने के बाद में वो कहते हैं कि हम सपोज कीजिए आईटी के स्टार्टअप्स में, आपकी बात का है, आईटी के स्टार्टअप्स में या आईटी के भी सीड कैपिटल में या बायोटेक के सीड कैपिटल में हम पैसा लगाएंगे। वो उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव बना लिया। आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव दे वुड अप्रोच द मार्केट। मार्केट में वो इस वाले मार्केट में नहीं आते जहां हम दिखाई दे रहे हैं, बट यस मार्केट में वो जैसे LIC के पास जाएंगे, उसके मैनेजमेंट के पास में, साहब आप हमें 100 करोड़ रुपया आप दे दो। फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, फिर वो म्यूचुअल उसके पास जाएंगे, जो भी मतलब ऐसे डिफरेंट जो जिनके पास में पैसा है उन लोगों के पास जाके कहेंगे कि भाई आप हमें सब्सक्राइब करिए 10 साल के लिए हमें या 7 साल के लिए पैसा दे दीजिए, हम ये 7 साल आपका पैसा 100 करोड़ रुपया, उम्मीद ये है, प्रॉमिस कोई नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड में प्रॉमिस नहीं होता ऐसे वो कहेंगे प्रॉमिस कोई नहीं, बट आई एक्सपेक्ट कि इफ आई इन्वेस्ट इन आईटी बिजनेसेस, और जो आजकल चले हुए हैं ना इसको कंज्यूमर आईटी बोल रहे हैं, आई इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेसेस, आई एक्सपेक्ट योर मनी टू बी ट्रिपल आफ्टर 7 years। सो आपकी 100 रुपीज 300 हो जाएगा विद दिस एक्सपेक्टेशन, इट्स यू गिव मी मनी। अब आप देखो कि ये इंडिया में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, जितने बैंक्स हैं कॉमर्शियल बैंक जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, LIC, GIC, ये ऑल आर गिविंग देयर मनी टू वेंचर कैपिटलिस्ट। सो वेंचर कैपिटलिस्ट गेट नाउ वन थिंग आपने जैसे नहीं सोचा अभी कि भाई हाउ डू दीज वेंचर कैपिटलिस्ट गेट मनी। वेंचर कैपिटलिस्ट गेट मनी फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स in this way. In India, the rule is you cannot invest, even I and you can invest in venture capital funds if we can subscribe, but condition is you cannot put less than 5 lakh rupees in a mutual venture capital fund. Why is this condition of 5 lakh rupees? क्योंकि आपसे हमने जैसे यहाँ लेक्चर हमने डिस्कशन में बातचीत हो गई और आप जाके बता रहे थे NK बिश्नोई तो वेंचर कैपिटल बहुत फायदा, और आंखें बंद करके आपने 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का वहां ले लिया। तो बिकॉज आई डू नॉट नो कि ये पैसे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये क्या करेंगे, तो कल को मुझे घाटा हो सकता है। तो ये मानते हैं कि जो 5 लाख रुपए लगा रहा है उसको इतना सेंस है बिफोर पुटिंग इन 5 लाख रुपीज कि वो इन डिटेल्स को कैन अंडरस्टैंड, कैन डिसाइफर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट वुड बी डन। सो 5 लाख रुपए रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको अपर लिमिट कोई नहीं है, आप चाहो तो 100 करोड़, 50 करोड़, 1 करोड़ रुपया, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव बीन इन्वेस्टिंग देयर मनी लाइक दिस। अब ये जो है आपने जो कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की बातचीत थी, उसका एक और आंसर है कि ये बड़े बदनाम भी होते हैं और बड़े टैलेंटेड भी होते हैं वेंचर कैपिटल वाले। अब आप एक चीज सोचिए, मेरे पास 100 रुपए और आपने मुझे दे दिए 900 रुपए और इक्विटी के लिए दिए हैं, तो आपका हिस्सा तो हो गया 900 रुपए का, तो आपका 90% की पार्टनरशिप और मेरी 10% की, तो कंपनी का मालिक कौन? आप हो गए। तो कहेंगे भाई हम इस पछड़े में नहीं पढ़ना चाहते, कंपनी के मालिक आप रहोगे, तो अब कैसे डिजाइन करें, वो डील कैसे करें कि आपका हो जाए। तो वो इस टाइप का मतलब इंडिया में तो ज्यादा अलाउड नहीं है, लेकिन आप अमेरिका में लोग जैसे रिसर्च पेपर्स वगैरह आप देखें उसमें मिलता रहता है। तो वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आपको इश्यू कर देंगे। वो उन्होंने कहा कि इक्विटी कैपिटल 10 रुपए हो गए NK बिश्नोई के, वेंचर कैपिटल ने 90 रुपए का प्रेफरेंस आपकी जो लिया है वो प्रेफरेंस शेयर है। प्रेफरेंस शेयर में वो लिख देंगे कि भाई अगर जो आपने डिविडेंड नहीं दिया देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर वुड आल्सो हैव वोटिंग राइट। डिविडेंड आप दे नहीं सकते तो आपको वोटिंग राइट मिल गया। अब वोटिंग राइट मिल गया तो 90% वोटिंग राइट उनका हो गया, लेकिन ऑनर आप हो कंपनी के लीगल पर्पज से। फिर कि अगर जो ये 5 साल बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर वुड बी कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर ऑन दीज टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो बड़े एलोबरेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के वो, और वो रूल में कभी आ भी नहीं सकते, क्योंकि आज आप जो रूल बनाएंगे कल को वकील और जो फाइनेंस एक्सपर्ट मिलकर उसका और
अपना नया डिजाइन कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को. तो दैट ऑलवेज कंटिन्यूस बेसिक, एंड थ्रू दिस ओनली ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो रूल वो बनाते हैं ना, डिजाइन ऑफ द स्कीम है, थ्रू दिस दे मैनेज एसिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन. ये देखिए, ये कभी हम आपस में डिस्कस करें कई चीजों को, जैसे मान लो मैं क्लास में बोलता हूँ ऐसे, इसका एक बड़ा आसान सा एग्जांपल बताता हूँ डिजाइनिंग से कैसे कर सकते हैं. एक बार हमसे पूछा वीसी ने कि भाई ये बच्चे नकल करते हैं, कोई तरीका बताओ. उनकी तरीका तो है सर, आप लागू करो. तो अब तरीका ये है कि हम एक रूल बना दें कि एग्जाम में, मतलब किसी ईयर में, अगर जो आपके क्लास में जो 5% लोएस्ट मार्क्स वाले बच्चे हैं वो फेल माने जाएंगे. भाई आपके चाहे 90% नंबर आ जाए, लेकिन अगर जो आप कैटेगरी में रैंकिंग में परसेंटाइल में लोएस्ट हैं तो यू वुड बी डिक्लेयर्ड फेल. तो इसका क्या फायदा होगा? यस. और फिर टीचर के ऊपर भी टीचर वुड आल्सो हैव टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, मार्क्स कैसे दे रहा, वरना तो भाई कल को रोज झगड़ा होगा कि भाई आपने इसको ज्यादा दे दिए, मुझे फेल कर दिया. तो फिर आपको ऐसा फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट मेथड निकालना पड़ेगा ना, जिससे मार्क्स पे कोई है ना. तो अब फिर इस टीचर ने क्लास ठीक से नहीं ली थी, ये टीचर टाइम से नहीं आते, ये बच्चे को फेवर कर रहे हैं, देन ऑल दीज इश्यूज वुड नहीं. आपको भाई इसका मतलब क्या है, जो हम कह रहे हैं रूल, ये रूल आइसोलेशन में नहीं बन सकता. आपको पूरा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा कि हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स सो दैट कि कल को स्टूडेंट, देखो ना उसमें दिल्ली में तो मर्डर हो गया टीचर का, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड. तो अब टीचर भी कहेगा भाई कि ऐसा रूल आप बना दो जो फेल हो वो टीचर को पीटे, तो ये तो वही. तो आई मीन द थिंग इज solutions are possible, but you will have to go for holistic solution. Solution cannot be in isolation. That is why only experienced persons. अब आप देखिए मैनेजमेंट की बात करो, ये टाटा और अंबानी तो वहां बैठ के सारा बिजनेस चला रहे हैं. वॉलमार्ट वाला, आज हम कहते हैं कि इंडिया में हमें इनकी जरूरत नहीं है, क्या नाम है, मैकडी की. आई कैन एग्री और डिसएग्री, बट यू सी मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी उनकी, वो हिंदुस्तान में आगे बिजनेस कर गए यार. बिस्लेरी वाला पानी पहुंचाता, आप देखो बिस्लेरी कोक की बोतल, मैंने जब 91 में 92 में उत्तरकाशी में अर्थक्वेक आया तो वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा था और कोक पहुंच गया. तो इसका मतलब मैं ये कह रहा था कि जो आईएएस अफसर पानी पहुंचाने वाला उसे बर्खास्त करके कोक के एमडी को यहां मैंने वहां बनाऊं. इससे कोक कंपनी को ही ठेका दे दो, आदमी प्यासा तो ना मरे कम से कम अर्थक्वेक में. एक दूसरा डायमेंशन ये भी तो है ना कि देयर आर, इसका मतलब इफ वी मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली वी कैन डू सर्टेन थिंग्स. बट then government system is, if not, I mean, adequate to meet the exigencies, we need to design more flexible system. We'll have to imitate all the better systems. The point is, venture capitalists are always on the forefront, on the frontier of this. They always inventing, creating new, I mean, things and like this. So all these conditional loans that your rate of interest is 3%. If your sale goes up, 2% of sale would come to me. So when sales are increasing, your return can be more. Income note can be there. When your profit is increasing, you would give me interest maybe more. I mean, this type of complex thing they keep on creating. Equity, again, something, as I discussed, this is preference capital convertible into this, or debenture convertible into this. Oh, sorry. These are exit routes. I mean, exit routes they can come out of your business by, listing on a stock exchange, selling of their share, or they can you give money and they would return your shares. In this way, one arrangement can be there. Buyback ho gaya. Then acquisition by another company. This is very popular mode, that I create you and me with the help of venture capital create a company. That company is taken over by another company. So अब सबको उस कंपनी ने जब हमें टेक ओवर कर लिया तो अपना अपना हिस्सा हमें मिल जाएगा. ये जो है बेसिकली certain things about venture capital. अब इंडिया में ये इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, बट हो थोड़ा सा यहाँ इसलिए मैं एक बार गो थ्रू हो जाते हैं फटाफट, सो दैट कि माइंड में रहता. सारे वैसे लोग रेफरेंस के लिए पड़ा रहेगा. ये 87 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था. ये
IDBI ने स्टार्ट किया था. फिर basically if you remember, IDBI, ICICI and IFCI, these three were the institutions supported by government to provide long-term finance to industries in the country during that time. So all these three institutions started venture capital funds. Now IFCI is no more, IDBI is almost extinct, they are converted into banks. So that is a separate story, but at that time they were very prominent and big names. They started this. ICI also started. Then if we go by categorization, one is government venture capital funds, then we have central government, state government, then promoted by banks, venture capital fund also promoted by banks, venture capital promoted by private companies, then venture capital promoted by foreigners. So I have already discussed this thing. Now you see, then you are right that presently what has been happening in our country is venture capital is basically to support small companies, as general perception is there. But in reality, there are 44 deals last year which involved more than $100 million funding. So $100 million funding cannot be called small. So in this way, it can be said that in India, venture capitalists are not supporting small, they are supporting big companies. But that is not the correct interpretation. I have already mentioned. Suppose Flipkart is coming forward. Flipkart is still a very risky company. And I tell you, in this field of technology, you would see Paytm is risky, Amazon.com is risky. Why are they risky? Uber and Ola Cab and this Oyo hotels, aggregators. In fact, makemoney.com, makemytrip.com. In fact, what is the problem is that when online business is there, a general rule of thumb is the first mover who ultimately succeed would get almost 70 to 80% of the total market. So the challenge before you is to remain on the top. If you are number one, then only you are safe. If you are not number one, you are not safe. So इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि Amazon.com नंबर वन है, तो फ्लिपकार्ट में जिन्होंने नॉट फ्लिपकार्ट ओनली, फ्लिपकार्ट को जिन्होंने सपोर्ट कर रखा है, दुनिया के कम से कम इंडिया का पैसा नहीं, विदेशों का पैसा लगा हुआ फ्लिपकार्ट में भी, तो जिन्होंने सपोर्ट कर रखा वो बोले यार हमने तो इसमें 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया, 2,000 करोड़ रुपया लगा दिया, वो पैसा डूब जाएगा, तो कहेंगे 2,000 करोड़ रुपया और लगाओ. They are trapped like this. उधर Amazon.com कहेगा कि हम लगाएंगे पैसा. अब आप इसका देखिए वोडाफोन का, जैसे इसमें टेलीफोन में स्टार्ट हुआ, क्योंकि टेलीफोन में भी वही है कि वंस आप नेटवर्क इज एस्टेब्लिश्ड, इकोनॉमी जब स्केल कम्स एंड यू आर सक्सेसफुल, सब आपको लेने लगते हैं क्योंकि योर नेटवर्क इज मोर एक्सपेंडेड. Reliance Jio Infocomm has already invested more than 1 lakh crore rupees. Business has not started, but they have sink in more than lakh crore rupees, rather 1,50,000 crore rupees. Vodafone, the moment Vodafone realized that JioCom is coming, they have sent almost 20,000 crore rupees additional to Vodafone in India for the word is war chest, so that they can compete with. Now, all these businesses, you said that why one business succeed and all others are trying. You see here, these 4-5 businesses, there were 20. We do not know about remaining 15s, whether they are in loss or where have they gone. But these, out of these 4, only one or at least 2, one would definitely go, maybe 2 would be out of market business. Only last 2 would succeed. So how your problem is how to remain on the top 1 or 2. And for that, everybody is, I mean, putting in more money. आपने 10,000 लगा दिया तो 12 करो, 12 कर दिया तो 20 करो, उसने 20 कर दिया तो 22 करो, फंसे हुए सारे बिजनेस. तो ये जो है, अब इसलिए यहाँ पे इंडिया में, because Indian venture market, capital market has been growing, maturing rather. So Flipkart, Ola.com, ये जो कंपनी थी, इस टाइप की कंपनी सबको $100 मिलियन की डील होने लगी. इसका मतलब स्टार्ट तो ये शुरू से ही हुई ना, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुए हैं. IT और ITES जो हैं, they have grabbed almost 45%, 50% share you can say.
ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, हेल्थ साइंस, इसमें भी चल रहा है। बाई आउट डील्स में भी काफी इसमें है। ये डेटा है, वी कैन ऑलवेज हैव ए लुक एट इट। All details, industry shares. This IT is important and others are not that important. In India, more focus is on IT. Biotech or healthcare are coming up very well. Others are, you always have chance, so it can be supported. These are the major sectors where money is invested. These are the areas. Now you see, I mentioned about Bangalore. Bangalore is here. The total amount invested in Bangalore is much less than in Mumbai. But Mumbai is not regarded as that big center for venture capital. The reason is Mumbai is there because in your banking, financial services, Mumbai is the capital of the country. And in finance, as far as money, a lot of money goes into, sometimes in billions of dollars. So if Flipkart is getting $100 million, a bank would be getting $2 billion or $100 billion, $1 billion. So total amount would be more in Mumbai, but that would be more in private equity. In Bangalore, it would be into venture capital. Exit. Now you see, one only thing is, when exits are successful, it means market has really matured. By exit means how profitably you have come out of the business. Yesterday you made investment, tomorrow you are successful, you take money and you are happy. It means when you as a venture capitalist are happy, it means our business person, boys who started the business, they are also happy. So this way exit are important, and exit is happening very frequently in the country. Successful exit, that is a very healthy sign, and it basically shows our healthy market for venture capital. So that is why we study this number of deals and return multiples. Now you can see this thing. This is return multiples, number of deals. Now return multiple 1 to 3. In 2000 last year, there were 82 deals where return was less than 3 times. हालांकि वो 3 टाइम भी कम नहीं होता, 100 रुपए लगाए 300 मिल जाए या 100 मिल जाए, 100 से 300 के बीच में हमें मिले जब 82 डील्स में, और 10 गुना मिला 6 डील्स में 2015 में. इंडिया में 6 ऐसी डील हुई जिनमें कि 10 गुना पैसा मिल गया, तो वो सारा प्रॉफिट उनसे कवर हो जाता है. ये फेमस नाम है जहां पे मल्टीपल्स हैं. आप देखो जेंसार टेक्निक, फ्लिपकार्ट में ऑलमोस्ट 17% रिटर्न मिल रहा है, जेंसार में तो 27% हो गया है ना, जस्ट डायल में 13% है. इस टाइप ये जहां पे हायर रिटर्न दिखाई दे रहा है, ये वही है जो कंपनी थी, कितना पैसा लगाया कितना बन गया उसका. फ्लिपकार्ट, ओला, स्नैपडील, सारी फेमस कंपनी है. थैंक यू वेरी मच.